हेलो एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. So now let's start the poem. The poem is actually, I just want to explain background of the poem. Actually, this poem is conversation. The poet Walt Whitman is talking to the rain, and uh, here he asks a question, and then the rain replies him. And here in this poem he is translating you the conversation, right? So, and everything is so good, so perfect, his question, and then he gets answer which is really very good. The answer is really very interesting. So now let's start this. Who art thou? Thou is like पहले के टाइम पर, एंशियंट टाइम पर, दाओ वॉज लाइक यू. तुम किसकी आर्ट हो? हु आर्ट दाओ? ठीक है. So the poet asked the soft falling rain, soft falling shower, the soft falling rain, धीरे धीरे जो गिर रही है, a question that who it was. He wants to know whose art it is. Now very strangely, means when he was talking, when he was asking the question, but what happened, there was this was strange thing which happened, which strange to tell. What he says, the poet says that this is very strange to tell you, that the rain gave me an answer which is really strange. The rain gave him an answer which is really strange. As here translated, means the poet is saying that the rain answered me of this question. And here in this poem, Walt Whitman is translating you whatever happened, whatever the rain said to him, right? This rain answered him, I am poem of the earth. I am poem of the earth, said the voice of the rain. What it says, what it answered, that I am, who am I? I am I am poem of the earth, right? So the rain chose to answer, and the rain, what it says, it declared that it was the poem of the earth. And what it and added, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal, what it says, that I am rising out, never ending. Eternal means continuous, never ending. Rising out, coming out of the land and from the deep endless sea. From, so what is it? Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. So what is the meaning of impalpable? Means that cannot be touched. Okay, so that cannot be touched. Eternal means continuously, everlasting, never ending. So what it says, that never ending, I am rising without, means nobody can touch me, out of the land and the bottomless sea. So I am coming out of the land and the bottomless sea. So have you seen, जो I think you know about it, or you have already read in the science, कि जो जब रेन ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है, राइट? तो इवेपोरेशन, यू कैन नॉट, इट इज़ इम्पैल्पेबल, यू कैन नॉट टच, बट यू नो दिस थिंग कि क्या होता है बॉटमलेस सी से, लैंड से क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो इवापोरेशन होता है, देन ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, देन अगेन रेन होती है, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है. तो इन्होंने दूसरे तरीके से कहा है, मतलब इन्होंने रेन के थ्रू ये बात आपको दोबारा समझाया है, आपकी साइंस को दोबारा बोला इन्होंने. एटर्नल आई राइज इन पैल्पेबल आउट, एटर्नल कंटिन्यूसली नेवर एंडिंग, आई एम राइजिंग टूवर्ड्स, ओके, आई एम राइजिंग फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. लैंड से भी, क्योंकि लैंड में भी पानी होता है ना, पानी ऊपर से जब रेन होती है तो पानी आता है, तो वो भी ऊपर जाता है, एंड बॉटमलेस सी से भी. नाउ अपवर्ड टू हेवन, व्हाट ही सेज, पोएट सेज, पोएट को आंसर मिल रहा है. द रेन इज सेइंग द थिंग, अपवर्ड टू हेवन, वेयर आई एम गोइंग टूवर्ड्स हेवन. वेंस, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती हूँ, ठीक है. अपवर्ड टू द हेवन, वेंस वॉकली फॉर्म्ड, जहाँ मैं वॉकली बनती हूँ, मतलब विदाउट एनी शेप, आई एम फॉर्मिंग माई सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड कम्प्लीटली चेंज, देयर आई एम कम्प्लीटली चेंज, आई एम नॉट, आई डोंट लुक लाइक रेन वाटर, ठीक है. तो क्या हो गया, आप मतलब आप जो रेन देखते हो वाटर के रूप में देखते हो ना, तो वो रेन नहीं हो, अभी मैं प्रॉपरली चेंज हूँ, वॉगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज, बट येट द सेम, बट स्टिल आई एम सेम, आई एम वाटर, आई एम रेन, है ना. वाटर है, वाटर को आप बहुत सारी चीज़ों में, मतलब रेन में भी वाटर ही होता है, और जब फ्लड होता है तब भी वाटर होता है ना. तो वाटर मतलब वाटर ही हूँ मैं, बट स्टिल
इन डिफरेंट फॉर्म, क्या, क्लाउड के रूप में। तो अपवर्ड टू हेवन वेंस वॉगली फॉर्म्ड, आई एम वॉगली फॉर्म्ड, आई एम नॉट वेरी क्लियरली फॉर्म्ड, आई एम वॉगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज, completely changed, I don't look like rain, but still I am the same. I descended to leave the draughts, I descend and then I come down, है ना। तो क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड्स के रूप में उनका उनका शेप बना। तो व्हेन इट सेज दैट आई एम ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम एंड नाउ इट इज कमिंग डाउन, आई डिसेंडेड, आई कम डाउन, डिसेंड मीन्स कम डाउन, टू लेव मतलब वॉश करना, वॉश, टू वॉश द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स क्या होते हैं, एंड एटमीज, ड्रॉट्स क्या होते हैं, जो पूरी ज़मीन सूखी पड़ जाती है जब बहुत तेज़ धूप आती है ना, गर्मी होती है, तो गर्मी से हर जगह क्या होता है, हर जगह ड्रॉट्स। तो ड्रॉट्स, एटमीज, एटम जो छोटे छोटे से एटम्स हैं, डस्ट लेयर्स हैं ऑफ द ग्लोब, ऑन दिस ग्लोब देयर on this globe there is dust layers, atomies, draughts, एवरीथिंग, आई कम डाउन टू वॉश दैम। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, मैं जब पानी रेन होते हैं तो पॉल्यूशन, हैव यू सीन, पॉल्यूशन भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेन। तो जब ड्रॉट्स के लिए, एटमीज के लिए, डस्ट लेयर के लिए ऑफ द ग्लोब, आई कम डाउन टू वॉश दैम एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, वॉट ही इट सेज। जब देखा है, जब रेन होती है तो हर जगह से छोटे छोटे से पेड़ हो जाते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे से न्यू जो सीड्स है वो ग्रो होने लग जाते हैं, प्लांट्स ग्रो होने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर मैं नहीं आऊँ, ऑल दैट इन दैम विदाउट मी आर सीड्स ओनली, लेटेंट मीन्स हिडन, अनबॉर्न, दे विल रिमेन hidden and unborn if I don't come. So what it says, that the rain, what it says, okay, the rain says that in the form of vapor, it keeps rising towards the sky where it changes its form and it condenses into tiny water droplets. It comes down, it condenses, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, into tiny water droplets, but it is not clearly formed, they are not clearly formed, though it form changed, but still they are same. Now the rain says that it falls on earth to provide water. Rain क्या करिए भाई, मैं, why I am coming back, I am coming down on the earth to provide water, greenery, to wash these dry areas. It washes everything, it washes away small particles, dust layers from the surface of the earth. Now what it says about seeds, that if I don't come, the rain gives life, means I am the only who can give those seeds, those are hidden and latent, I give them life. क्या कौन कह रहा है, रेन कह रही है कि रेन गिव्स लाइफ टू द सीड्स, दोज हु आर हिडन अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ, तो उनकी वजह से वो सीड्स ग्रो होते हैं। Now the seeds grow up to become plants only, and because of the rain, what it says, because of the me only, because of the rain, in this way it gives life to this earth. तो इस तरीके से I give life to this earth. All of them, they will be hidden and latent if I don't be here now. And forever, day and night, I give back life to my own origin. और दिन और रात मैं अपनी लाइफ को origin देती रहती हूँ। कैसे, मैं वापस ऊपर वेपर के रूप में जाती हूँ, देन वहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं और छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स का कंडेंस होता है, कंडेंसेस के थ्रू आई कम डाउन। ठीक है, तो और मैं सब चीज़ों को, आई गिव लाइफ टू दो सीड्स, डस्ट लेयर को वॉश कर देती हूँ मैं, तो मैं एवरीथिंग आई मेक them beautiful. So now what it says, that I give life to my own origin and make pure and beautify it. The rain says, the rain says that throughout day and night it keeps rising in the form of vapor. Always I am forming in vapor, and provides life and greenery to the place, to the earth, and make it, and where it originate हुई है, जहाँ पर ना, जहाँ ये ओरिजिन होती है, मतलब कहाँ से ये रेन कहाँ से बनती है, लैंड या सी से बनती है ना, ये वेपर के रूप में, इट गोज़ अप एंड देन फिर उसके बाद में क्लाउड्स एंड देन कम डाउन, तो वापस जब नीचे आती है तो इट इज़ गिविंग लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, वापस नीचे आ रही है, फिर वेपर के रूप में ऊपर जाएगी। ठीक है, नाउ
provides life and greenery and to its or to its own origin. Now what it says, the rain's birthplace, the rain keeps on enhancing the beauty. Make pure and beautify it means what I do, what it does, rain क्या करती है, the rain keeps on enhancing the beauty of the earth, purity of the earth forever. But means it makes the earth pure and beautiful. Have you seen pollution कम हो जाता है, so this rain makes the earth pure and beautify it, enhance its beauty, its purity always. So this is rain. Now for song issuing from its birthplace after fulfillment, wondering what it says, the rain after completing its works कम्स बैक टू द अर्थ। क्या कहती है, मैं अपना वर्क मतलब मैं वेपर के रूप में ऊपर जाती हूँ, देन क्लाउड्स वापस वापस रेन के रूप में आती हूँ, देन अगेन फिर मैं अपना सारा काम करके फिर वापस आ जाती हूँ, फिर वापस काम करके। तो ऐसे मतलब हियर देन हियर दिस इज़ एग्जाम्पल, जो ब्रैकेट में दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सेम थिंग। ऐसा ही सॉन्ग के साथ में होता है कि शी इज़ लाइक सॉन्ग, उन्होंने फर्स्ट लाइन में कहा था ना कि आई एम पोम ऑफ द अर्थ, शी इज़ लाइक अ सॉन्ग विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एंड पूरी दुनिया में घूमता है एंड देन वापस जब आता है तो कैसे आता है, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। ठीक है, तो ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, सारी जगह विदाउट केयरिंग वेदर इट इज़ हीडेड और नॉट, कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, विदाउट मतलब एक सॉन्ग जो है बड़ा अच्छा सॉन्ग आया, आपको सुना, मुझे नहीं अच्छा लगा, तीसरे इंसान ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन ये सॉन्ग जब वापस लौट के आया तो किसी को पसंद आया, इट वॉज़ लव, किसी को नहीं पसंद आया, अलग बात हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से वो सॉन्ग वापस आ जाता है। ऐसा ही रेन होती है, रेन किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, कोई इग्नोर करता है, कोई ध्यान देता है, नहीं देता। तो इस तरीके से करते हुए वो वापस अपनी जगह पर, मतलब सबको इग्नोर करते हुए अपना काम पूरा करके आती है। ऐसे ही रेन होता है, ऐसे ही सॉन्ग होता है जो कि पूरी जगह पर मतलब घूमते हुए ट्रेवल करता है, पूरी जगह पर ट्रेवल करते हुए अराउंड द वर्ल्ड इट कम्स बैक, हीटेड और नॉट, कोई ध्यान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, बट स्टिल सम पीपल आर इग्नोरिंग द सॉन्ग, सम पीपल आर नॉट, सम आर enjoying द सॉन्ग। तो वो अपना काम कर रहा है, इट इज़ ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो नाउ रेकेंड, अब आप बोलोगे वंडरिंग, रेकेंड एंड अनरेकेंड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। रेकेंड मीन्स होता है विदाउट केयर अबाउट और पेड हीट टू, मतलब कि रेकेंड मीन्स होता है केयर करना एंड अनरेकेंड मीन्स पे नो अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं देना। ठीक है, ओके। नाउ अनरेकेंड विद लव रिटर्न्स, फिर भी ये लव के साथ में रिटर्न होता है। फाइन, इतना समझ आ गया। कुछ वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर एंड आई टोल्ड यू सम वर्ड मीनिंग्स। ओके, कौन कौन से मैंने वर्ड मीनिंग्स बताए थे आपको, एटर्नल, नेवर एंडिंग, इम्पैल्पेबल, आई दैट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, और अपवर्ड टू द हेवन, वॉगली मीन्स विदाउट एनी, एक मिनट, विदाउट एनी शेप। ठीक है, ड्रॉट एट मीन्स डस्ट लेयर्स एंड डिसेंड मीन्स कम डाउन। ठीक है, और एनीथिंग एल्स विदाउट, लेटेंट, लेटेंट मीन्स हिडन, अनबॉर्न, it is already given here, and origin, make it beautify, issue in the full, and here reckon means, I told you reckon means होता है that cared about, और unreckoned means not cared about। ठीक है, so people are caring or not caring but the song returns with love। ऐसे ही रेन होती है, some people ignore, some people enjoy, और कुछ को नहीं पसंद आता है but it returns with love। okay, so this is the poem। नाउ अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देना चाह रही हूँ, वेट अ मिनट। ओके, तो अगर आपको समझ आया है दैट्स वेरी गुड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब्स एज वेल। ओके, एंड नाउ वेट अ मिनट, and now I want to give you a question which is, आप मुझे बताओगे, I am
द पोम ऑफ अर्थ। देखो मैंने तुम लोग को ना फिगर ऑफ स्पीच बताए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप बताओगे आई एम, ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, दिस इज़ वेरी फर्स्ट लाइन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। इट इज़ सिमली, आई टोल्ड यू वेन एवर आई टीच यू द पोम आई ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट सिमली, जहाँ पर कंपेयर होता है विद बाय यूजिंग एज और लाइक, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। इन तीनों में से कौन सा होगा? पर्सोनिफिकेशन, आई टोल्ड यू पर्सोनिफाइड करते हैं नॉन लिविंग थिंग को, लाइक अ पर्सन वी पर्सोनिफाइड। मेटाफर, देयर इज अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। सो व्हाट डू यू थिंक हियर? ओके, यू विल आंसर मी इन कमेंट बॉक्स और इट इज़ अप टू यू, आप आंसर कर सकते हो जैसे आप चाहो, ठीक है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।